کیا ہوگا اگر میں آپ کو ایک فیکٹری بتاؤں جو وسطی چین میں چھپی ہوئی ہے، جس نے عالمی آٹو انڈسٹری کو اپنے سر پر پلٹ دیا؟ کیا ہوگا اگر یہ واحد سہولت ایک مہینے میں زیادہ الیکٹرک کاریں تیار کرتی ہے جو کچھ ممالک ایک سال میں کرتے ہیں، اور ایشیا سے باہر تقریباً کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ موجود ہے؟ یہ کوئی پیشین گوئی نہیں ہے، یہ پہلے ہی یہاں ہے، اور یہ ٹیسلا کی ناوید سے 10 گنا بڑا ہے۔ یہ صرف بڈ بنانے والی کاریں نہیں ہیں، یہ بڈ ایک بھی گولی چلائے بغیر ہر مغربی کار ساز کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ چین کے شہر ژینگژو میں خاموش انقلاب جاری ہے۔ ہر منٹ میں ایک پلانٹ، 2 الیکٹرک گاڑیاں، بیٹریاں، چپس، سیمی کنڈکٹر، یہاں تک کہ شیشہ، سب اندرون خانہ بنایا گیا ہے۔ کوئی سپلائر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، صرف صنعتی تسلط۔ اور مغرب ابھی بھی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی ٹویٹ کر رہے ہیں، ابھی تک اس بات کو کم نہیں کر رہے ہیں کہ ہینن کے کوہرے سے کیا نکلا ہے، کیونکہ یہ گیگا فیکٹری نہیں ہے، یہ ایک ہتھیاروں والا ماحولیاتی نظام ہے، ایک زندہ مشین ہے، اور آگے جو کچھ ہوتا ہے اس سے تجارت کا توازن، توانائی کا مستقبل، اور اگلے 100 سالوں تک سڑک کو کون کنٹرول کرتا ہے۔ آپ ان اندرونی کامیابیوں سے محروم نہیں رہنا چاہتے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لائک کو دبائیں، سبسکرائب کریں، اور بند رہیں، کیونکہ ہم اس فیکٹری کو بے نقاب کرتے ہیں جو عالمی طاقت کو دوبارہ لکھ رہی ہے۔ ژینگژو، چین، ایک شہر جو کبھی ٹرین یارڈز اور گوداموں کے لیے جانا جاتا تھا، اس نے عالمی آٹو انڈسٹری کے مستقبل کو دوبارہ لکھا ہے۔ سائنس فائی یکسنگی کی طرح زمین سے اٹھنا بڈ کی نئی میگا فیکٹری ہے، اور اسے بڑے پیمانے پر کہنا قریب نہیں آتا۔ یہ صرف نیواڈا میں ٹیسلا کی مشہور گیگا فیکٹری سے بڑا نہیں ہے، یہ 10 گنا بڑا ہے۔ یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ حقیقی ہے، یہ آپریشنل ہے، اور یہ ہر منٹ میں 2 الیکٹرک گاڑیاں تیار کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے، دن کے 24 گھنٹے، کوئی سٹاپ، کوئی شفٹ نہیں، بس کچے صنعتی پٹھے۔ اس فیکٹری کے اندر مشینیں بیک نہیں لیتی، اور نہ ہی خواہش۔ یہ کار پلانٹ نہیں ہے، یہ ایک خود ساختہ صنعتی ماحولیاتی نظام ہے، عملی طور پر ایک شہر زمین پر کسی بھی دوسری ویب سائٹ کے مقابلے میں زیادہ آٹومیشن کے ساتھ بنایا گیا۔ یہ پیمانے پر ایک ماسٹر کلاس ہے، ایک سے زیادہ سٹیمپنگ لائنیں، مربوط بیٹری اسمبلی، شمسی توانائی سے چلنے والی لاجسٹکس لوپ، اور ایلون مسک کے جبڑے کو گرانے کے لیے کافی اے آئی سے چلنے والی روبوٹکس۔ ابھی تک بڈ نے اپنے 8 مرحلوں کے منصوبے کا صرف 5واں مرحلہ مکمل کیا ہے، اور یہ پہلے ہی لاکھوں گاڑیاں تیار کر رہا ہے۔ اسے اندر ڈوبنے دو۔ فیکٹری بھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اور یہ پہلے ہی جاپان سے جرمنی تک میراثی آٹو پلانٹس تیار کر رہی ہے۔ لیکن کنکریٹ، سٹیل اور سولر پینلز سے ہٹ کر یہ میگا فیکٹری کہیں زیادہ زلزلہ کی علامت ہے۔ کئی دہائیوں تک مغرب آٹوموٹیو پاور کا غیر متنازع مرکز تھا، ڈیٹرائٹ، سٹٹگارٹ، ناگویا۔ اس کے بعد سلیکون ویلی اور ٹیسلا خلل ڈالنے والا آیا، لیکن اب زلزلے کا مرکز دوبارہ منتقل ہو گیا ہے۔ مغرب نہیں، مشرق نہیں، بلکہ چین کے صنعتی مرکز میں گہرا ہے۔ اچانک سوال اب نہیں ہے کیا چین پکڑ سکتا ہے، یہ ہے کیا کوئی اور رکھ سکتا ہے؟ اور یہ سب شینزین کے ایک چھوٹے سے کونے میں شروع ہوا۔ 1995 میں بڈ بیٹری کے سٹارٹ اپ سے زیادہ کچھ نہیں تھا، جسے وانگ چوئنگفو چلاتا تھا، جو ایک سابق سرکاری انجینئر تھا جس کا کار بنانے کا کوئی پس منظر نہیں تھا، اور لائٹس کو آن رکھنے کے لیے بمشکل کافی رقم تھی، لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بصارت اور ہمت تھی۔ اس وقت بڈ نے فون کے لیے بیٹریاں بنائی تھیں، ٹیسلاس نہیں، ٹرک نہیں، فون نہیں۔ ان کا مقابلہ فورڈ سے نہیں بلکہ سامسنگ سے تھا، لیکن وانگ اجزاء کی فراہمی میں مواد نہیں تھا، وہ پوری مشین چاہتا تھا۔ ایک دہائی کے اندر بڈ بیٹری بنانے والی کمپنی سے مکمل آٹو میکر بن گئی۔ 2010 کی دہائی تک یہ پہلے ہی چین میں ٹویوٹا کو چیلنج کر رہا تھا، لیکن 2024 تک تبدیلی مکمل ہو چکی تھی۔ اس سال بڈ نے حیرت انگیز طور پر 4.3 ملین گاڑیاں فروخت کی، جس نے خالص حجم میں ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آمدنی $5.6 بلین کے منافع کے ساتھ $108 بلین تک پہنچ گئی، اسے کرہ ارض پر سب سے زیادہ منافع بخش ایب فرموں میں شامل کر دیا۔ مغرب نے پلک جھپکائی، پھر دوبارہ دیکھا، یہ کاپی کیٹ نہیں تھا، یہ ایک جگنو تھا۔ راز صرف پیمانہ نہیں تھا، یہ کنٹرول تھا۔ جبکہ زیادہ تر کارساز کلیدی اجزاء کو آؤٹ سورس کرتے ہیں، چپس، بیٹریاں، موٹریں، بڈ صرف گاڑیوں کو جمع نہیں کرتا ہے، یہ گھر میں تقریباً ہر چیز تیار کرتا ہے۔
اس کی ذیلی کمپنی خاموشی سے دنیا کی دوسری سب سے بڑی ایف بیٹری بنانے والی کمپنی بن گئی ہے، عالمی مارکیٹ کے 17% کے ساتھ کے بالکل پیچھے ہے۔ کمپنی اپنے سیمی کنڈکٹر خود ڈیزائن کرتی ہے، ملکیتی سافٹ ویئر تیار کرتی ہے، یہاں تک کہ اپنی الیکٹرک ڈرائیو ٹرینیں بھی بناتی ہے۔ یہ عمودی انضمام صرف ایک حکمت عملی نہیں ہے، یہ بڈ کی سپر پاور ہے۔ جہاں دوسرے سپلائی چینز کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہاں بڈ خود بناتا ہے اور خیمے وہاں نہیں رکتے۔ جبکہ بڈ آٹو سڑکوں پر کمپنی کے عروج کو طاقت دیتا ہے، بڈ الیکٹرانکس پردے کے پیچھے کام کرتی ہے، ایپل، ہواوے اور ہاں یہاں تک کہ ٹیسلا کو بھی اجزا فراہم کرتی ہے۔ یہ مشین میں بھوت ہے، تقریباً ہر بڑی الیکٹرانکس سپلائی چین میں ایک خاموش کھلاڑی۔ لیکن تاج زیور کی بیٹری 2020 میں اس نے گیم چینجر بلیڈ بیٹری کی نقاب کشائی کی۔ آگ سے بچنے والی، ساختی طور پر سخت اور ناقابل یقین حد تک گھنی، یہ بیٹری دباؤ میں نہیں پھٹتی ہے۔ لفظی طور پر اس نے کیل دخول کا امتحان پاس کیا جبکہ حریف آگ میں بھڑک اٹھے۔ مغرب میں کسی نے اسے آتے نہیں دیکھا، اور جبکہ یورپی کار ساز اب بھی ہابرڈ لائن کو گھیرے ہوئے ہیں، بڈ نے اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ 2022 میں یہ پہلی بڑی آٹو میکر بن گئی جس نے اندرونی دہن والی گاڑیوں کی پیداوار کو مکمل طور پر روک دیا۔ مزید گیس نہیں، مزید ڈیزل نہیں، بس پلگ ان ہابرڈز اور مکمل بیٹری الیکٹرکس۔ یہ صرف ایک فلیکس نہیں تھا، یہ ایک انتباہی شاٹ تھا۔ بڈ یہاں ڈیٹروٹ وولفسبرگ کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نہیں تھا، یہ ان کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تھا۔ آج بڈ ایک 3 سر والے صنعتی جانور کے طور پر کھڑا ہے۔ ایک بازو ایوز بناتا ہے جو ٹیسلا کو پیچھے چھوڑتا ہے، ایک اور بازو دنیا کے فونز اور ٹیبلٹس کو طاقت دیتا ہے۔ تیسرا، بیٹری کی جدت کو اب تک آگے بڑھاتا ہے کہ میراثی کار ساز صرف یہ سمجھنے کے لیے ہچکولے کھا رہے ہیں کہ ہڈ کے نیچے کیا ہے۔ یہ سب ایک ہی چھت کے نیچے ایک ایسی کمپنی کے ذریعہ ترتیب دیا گیا ہے جسے صرف 2 دہائیاں قبل عالمی تجزیہ کاروں کے ذریعہ غیر متعلقہ سمجھا جاتا تھا۔ بیانیہ بدل گیا ہے، کردار بدل چکے ہیں، اور ای وی ریس کے اس نئے باب میں چین اب پیچھا نہیں کر رہا، وہ آگے ہے۔ اور زنگزاؤ میں بڈ کی میگا فیکٹری اس بات کا ثبوت ہے کہ عمودی انضمام ریاست کی پشت پناہی اور صنعتی جنون کے آپس میں ٹکرانے پر کیا ہوتا ہے، اس بات کا ایک بہت بڑا گنگناتی یادگار۔ اور یہ صرف شروعات ہے، کیونکہ جینگزو فیکٹری کوئی آؤٹ لیئر نہیں ہے، یہ ایک بلیو پرنٹ ہے۔ صنعتی سپر پاور کے سفارت خانوں کی طرح پوری دنیا میں فیکٹریاں پھوٹ رہی ہیں۔ برازیل میں بڈ کے 3 بڑے پلانٹ سرگرمی کے ساتھ گنگناتے ہیں، ایک الیکٹرک بسوں کے لیے وقف، دوسرا مسافر ای وی کے لیے، اور تیسرا صرف لیتھیم پروسیسنگ کے لیے۔ تھائی لینڈ میں ایک $1.4 بلین کمپلیکس تیزی سے بڑھتی ہوئی آسیان مارکیٹ کی خدمت کے لیے زمین سے اٹھتا ہے، اور کینیڈا میں بڈ خاموشی سے پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر میں امریکی غلبہ کو چیلنج کرنے والے متعدد صوبوں کے لیے الیکٹرک بسیں بنانے کے معاہدے جیتتا ہے۔ لیکن وہ اقدام جس نے یورپ کو سب سے زیادہ چونکا دیا، ہنگری 2026 کے آغاز کی تاریخ، ایک سائٹ، ہزاروں نوکریوں کا وعدہ، اور یہ سب اس وقت جب یو ریگولیٹرز چینی ایوز پر ٹیرف لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بڈ نہیں جھکا، اس نے خود کو یورپی یونین کے اندر سرایت کر لیا۔ کوئی درآمدی ڈیوٹی نہیں، شپنگ کا طویل وقت نہیں، صرف یو سرحدوں کے اندر سے باراست سے مارکیٹ پائپ لائن۔ کمپنی کی پیداوار جہاں اب بیچتے ہیں، نظریہ صرف اچھا پی آر نہیں ہے، یہ جغرافیائی سیاسی موصلیت ہے۔ یہ توسیع نہیں ہے، یہ مقامی اینٹوں کے ذریعہ عالمی ای وی مارکیٹ کی اینٹوں کی اسٹریٹجک نوآبادیات ہے۔ بڈ کی فیکٹریاں عام اسمبلی لائنیں نہیں ہیں، یہ علاقائی قلعے ہیں جو رگڑ کو کم کرنے، مقامی ترغیبات سے فائدہ اٹھانے اور قربت کے ذریعے غلبہ حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ ٹیسلا کے یورپی ونگ نے الارم بجایا۔ چینی صرف نہیں آ رہے تھے، وہ پہلے سے ہی اگلے دروازے پر تھے۔ لیکن مرکز جینگزو ہے، جو کبھی لاجسٹک بیک واٹر تھا، وہ اب عالمی ای وی ریس کا دھڑکتا ہوا صنعتی دل ہے۔ 50 مربع میل فیکٹریاں، دفاتر، گھر اور انفراسٹرکچر، ایک پروڈکشن زون جو ٹیسلا کی ناویدہ کو بھی ایک پروٹوٹائپ کی طرح دکھاتا ہے۔ 6 اسمبلی لائنیں پہلے سے موجود ہیں، ہر ایک مشینی درستگی کے ساتھ گنگناتی ہے، ہر ایک واحد مقصد کے لیے انجینئر ہے۔ پیمانہ جو مقابلہ کو گھٹا دیتا ہے، 2025 تک 1 ملین کاریں ہر 60 سیکنڈ میں 2 ای وی۔ لیکن جینگزو صرف پیداوار نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب ہے جس کی اپنی تال ہے۔ کارکنوں کے لیے اونچے ڈورم، ان کے بچوں کے لیے 2 لسانی اسکول، اسپتال، پارکس، یہاں تک کہ بڈ بانڈڈ سپر مارکیٹ۔ فیکٹری اب کام کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک شہر ریاست ہے۔
मुलाजमत का मकसद 2 लाख कारकुनान। ये टाइपिंग की गलती नहीं है, ये एक ऐलान है। बिड किसी भी सनत में चीन का सबसे बड़ा निजी आजिर बन रहा है और अफरादी कुव्वत सिर्फ मकामी नहीं है। इंजीनियर्स जर्मनी से, सप्लाई चेन मैनेजर्स ब्राजील से, सॉफ्टवेयर टीमें हिंदुस्तान में तरबियत याफ्ता है। ये आलमी इंसानी सरमाया मरकजी चीनी मंसूबा बंदी के साथ मिला हुआ है और जो इस मेगा सिटी के नीचे बैठा है वो इससे भी ज्यादा बहादुर है। पूरा कैंपस जमीन के नायाब ज़खायर और लिथियम की कानों के पास बैठा है। ट्रकों में बैटरियां नहीं होती, वो तैयार शदा कारों को बाहर ले जाते हैं। रेल लाइनें चीन के तेज रफ्तार रेलगढ़ से फैक्ट्री में मकड़ी का जाल डालती हैं, जिससे तैयार शदा ईवी को घंटों में साहिल से साहिल तक पहुंचाया जा सकता है। ये लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये लॉजिस्टिक तसल्लुत है। शिपिंग के अखराजात 20% गिर जाते हैं। डिलीवरी की टाइम लाइन्स में 30% की कमी है और चूंकि हर बड़ी चीनी बंदरगाह रात पहुंच जाती है, इसलिए बिड इंतहाई तेज रफ्तारी से बिंद कर सकता है, जबकि हरीफ रुकावटों के साथ जिदोजहद कर रहे हैं। लेकिन पैमाने का मतलब खुद मुख्तारी के बगैर कुछ नहीं है। ये वो जगह है जहां बिड मुकम्मल अमूदी हो जाता है। सप्लाई चेन का हर अहम हिस्सा अंदरून खाना बैटरी सील्स जो के जरिया तैयार किए गए हैं और कार लाइनों से सिर्फ मीटर के फासले पर जमा किए गए हैं। माइक्रोचिप्स, बिड क्लीन रूम्स, मोटर्स, कंट्रोलर्स, सस्पेंशन सिस्टम, यहां तक के एसी यूनिट्स के अंदर तैयार किए गए हैं। गैर मुल्की फरोशों पर कोई इन्हिसार नहीं है। ताइवान के फैब्स, कोरियाई बैटरी बनाने वालों पर कोई इन्हिसार नहीं है। ये पूरी तरह से सनती कौम प्रस्ती है। तसव्वुर सिर्फ अमूदी इंज़िमाम नहीं है, ये खुद मुख्तार इंज़िमाम है। एक फैक्ट्री जो अपने फैक्ट्री के अज्जा बनाती है, एक कार कंपनी जो अपना बुनियादी ढांचा बनाती है, एक सप्लाई चेन जो अपने तख्लीक कारों की मर्जी के मुताबिक होती है और उसमें से कोई भी सस्ता नहीं आया। ज़ेंगज़ाओ की म्यूनिसिपल हुकूमत की जानिब से बुनियादी ढांचे की तरगीबात में $500 मिलियन हाईवेज को दोबारा बनाया गया। पावर प्लांट्स को तोसी दी गई। पानी की सहूलियात को सिर्फ बिड की ज़रूरियात के लिए बढ़ाया गया। टैक्स में छूट, सिफर सूद के कर्जे और ज़मीन के खुसूसी सौदों ने ये सब मुमकिन बनाया। लेकिन ये खैरात नहीं थी, ये एक हिसाबी सरमायाकारी थी जो एक हुकूमत की तरफ से अपने माशी मुस्तकबिल को बिजली बनाने पर लगा रही थी। प्राइवेट कंपनी और रियासती मशीनरी के दरमियान लकीरें पूरी तरह धुंधली हैं। हुकूमत के हिमायत याफ्ता बैंकों ने सरमाया फराहम किया, मकामी हुक्काम ने ज़मीन फराहम की और बदले में बिड ने मुलाजमतों, बिमद्दात और वक़ार का वदा किया। ये एक अलामती नमूना है आलमी तसल्लुत के बदले में सियासी हिमायत। और नतीजा एक पब्लिक प्राइवेट जॉगरनाट जिसका मगरिब में कोई बाब नहीं है। दरी असना मगरबी हरीफ अब भी बंदरगाह में फंसे हुए बिखरे हुए सप्लायर्स और सीमी कंडक्टर्स से झगड़ रहे हैं। बिड पहले से ही नई बैटरी केमिस्ट्री तैनात कर रहा है, अपनी फैक्ट्रियों के पैदल फासले के अंदर नायाब जमीनों को बेहतर कर रहा है और अपनी लॉजिस्टिक्स को मिलिट्री जैसे कोऑर्डिनेशन के साथ खड़ा कर रहा है। ये सिर्फ ईवी प्रोडक्शन नहीं है, ये जंगी दर्जे का मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन है और ये डिजाइन के लिहाज से आलमी है। माल बदर जहाजों के बेड़े के साथ बिड अब अपनी शिपिंग लेन को कंट्रोल करता है। बैरून मुख सैटेलाइट फैक्ट्रियों के साथ ये मीटाडोर की तरह टैरिफ को चकमा देता है। सप्लाई चेन खुद मुख्तारी के साथ ये बहरान में अछूत है। कोई सीमी कंडक्टर की कमी नहीं, कोई लिथियम ताखीर नहीं, कोई इन्हिसार नहीं, सिर्फ अमल दरामद। कोई तवक्कुफ नहीं, कोई छत नहीं और कोई मगरबी मसावी नहीं। हर नई सहूलत, हर नई लाइन, हर लॉजिस्टिक्स नोट एक ही झरने वाले मंसूबे का हिस्सा है। पैदावारी पैमाने पर आलमी तसल्लुत। जबकि दीगर कारसाज मॉडल्स को बिजली फराहम करने की कोशिश करते हैं, बिड बाज़मुहे को बिजली फराहम कर रहा है और अब वो सनती रफ्तार मार्केट शॉक वेव्स में तर्जमा कर रही है। टेस्ला में खलल नजरियाती नहीं था, ये वोल्टेज के इजाफे की तरह मार्केट में आया। बिड की डॉल्फिन सिर्फ एव मैदान में दाखिल ही नहीं हुई, बल्कि इसने कीमतों का तयन करने की मंजिल को तेज कर दिया, जो यूरोपीय हरीफों के मुकाबले $8,000 से ज्यादा सस्ता और टेस्ला मॉडल 3 से तकरीबन 1/3 कम से शुरू होता है। डॉल्फिन मुसाबकती क्रैश रेटिंग्स, जदीद तरीन बैटरी टेक और जारहाना अंदाज में तमाम फैक्ट्रियों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पेश करता है। 3,60,000 यूनिट्स फी महीना। ये कुछ मगरबी ईवी स्टार्टअप्स के पूरे सालाना आउटपुट से ज्यादा है। टेस्ला के अंदर खतरे की घंटियां नहीं बज रही थीं, वो बज रही थीं। 2024 के एक लीक होने वाले अंदरूनी मेमो ने खबर किया है कि हमें 18 माह के अंदर एशिया को खोने का खतरा है। एल्विन मस्क के कभी अछूत अमूदी इंजमाम को अब बिड के बंद लूप सिस्टम्स के जरिए आउट क्लास किया जा रहा है,
जो कान कनी से लेकर मोटर्स तक हर चीज को एक ही सिंक्रोनाइज्ड कमांड के तहत संभालते हैं। नेवाडा और बलन में टेस्ला की गीगा फैक्ट्रियां मुतासिर कुन्हा, लेकिन बिड के ज़ेंगज़ाओ कम्प्लेक्स की कारकर्दगी हजम मुवाफ़क़त के करीब कहीं भी नहीं। चीन में एक मॉडल 3 अब लग्जरी सप्लरज की तरह महसूस होता है, एक डॉल्फिन स्मार्ट डिफ़ॉल्ट की तरह महसूस होता है। ये सिर्फ मार्केट में खलल नहीं था, ये नकल मकानी थी। लेकिन जीनगजू को सिर्फ कारें बनाने के लिए नहीं बनाया गया था, ये जोग्राफियाई सियासी इरादे को पेश करने के लिए बनाया गया था। जबकि अमरीकी कारसाज कंपनियां स्टॉक की कीमतों और कमाई की कालों में फंस गई थीं, बिड ने वॉल स्ट्रीट की आशीर्वाद सिलिकॉन वैली की तारीफ के बगैर अंदरून मुख्य शहर को 21वीं सदी के डिट्रॉइट में तब्दील कर दिया। सिर्फ 5 सालों में जीनगजू एक लॉजिस्टिक मरकज से एक खुद मुख्तार सनती हथियार बन गया। कोई मुशीर नहीं, कोई प्रेस टूवर नहीं, कोई खलफिशार नहीं। इसका डिज़ाइन एक पैगाम, खुद साख्ता मॉड्यूलर, आलमी सतह पर तौसी पजीर, गैर मुल्की रुकावटों और बैरूनी मंजूरी से बेनियाज है। चाहे मगरिब बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी और मुस्तकबिल की हिफाजत के बारे में बात करता है, बिड सिर्फ तामीर करता है। जबकि अमरीकी कानून साज टैक्स क्रेडिट्स और बुनियादी ढांचे के बिलों पर बहस करते हैं, बिड जहाज़ों ने रेलवे पर गाड़ियां तैयार की जो इसके ताउन से चलाई जाती हैं, बेटियों से चलती हैं जो इसको बेहतर करती हैं। इसके तरबियत याफ्ता इंजीनियरों ने डिज़ाइन किया था, ज़मीन पर इसे म्यूनिसिपल इत्तेहाद के जरिए दिया गया था। ज़ेंगज़ाओ सिर्फ चीनी नर्म ताकत की अक्कासी नहीं करता, ये नई प्लेबैक है। ये कहता है हमें आपकी मार्केट की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले ही अपनी मंडी बना ली है। लेकिन टाइटनर्स भी ठोकर खाते हैं। पॉलिश रोबोटिक्स और लामुत्तनाही असेंबली लाइनों के नीचे खतरात पक रहे हैं। सबसे पहले गंजा। चीन की घरेलू ईवी की मांग ठंडा हो रही है। यूरोप का भी ऐसा ही है। गोदाम खामोशी से भर रहे हैं। अगर आलमी सतह पर भूख रुक जाती है तो ये गाइगर ऑपरेशंस गाइगर की वाजिबात बन जाते हैं। बेकार कारखाने, मुंजमद सरमाया। दूसरा, सप्लाई चीन की नुमाइश। बिड मकामी सोर्सिंग पर फख्र करता है, लेकिन अगर लिथियम की कीमतें बढ़ीं तो क्या होगा? अगर अफ्रीकी और जनूबी अमरीकी नायाब ज़मीन की बिमद्दात सख्त हो जाएं। लोकलाइजेशन इस मामले में कमज़ोरी को बढ़ा सकती है बजाय इसके कि इसके खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तीसरा, इंसानी कीमत। 2 लाख कारकुनान जिन्हें मुफ्त खाना और रहाइश फराहम की जाती है, अब भी इंसान हैं। हॉस्टल की रोशनियों के नीचे बेचैनी फैल रही है। सकाफती तब्दीलियां हमेशा कारपोरेट टाइमलाइंस के मुताबिक नहीं होती है। चीन ने पहले भी मजदूरों की बगावत देखी है। फॉक्सकॉन की तारीख एक इंतबाह है, एक फुट नोट नहीं। चौथा, माहौलियाती दबाव। जीनगजू प्लांट शहरी फैलाव के करीब बैठा है। गंदे पानी इखराज और शोर की जांच पड़ताल की जा रही है। मगरिब को एक्सपोर्ट करते वक्त की दर्जा बंदी अहम होती है और बिड का नक्शा बहुत नाजुक है। एक गलती, एक स्कैंडल और बॉन्ड हसास बाजारों में ताबकार हो जाता है। अपनी पूरी ताकत के लिए बिड अब अपनी ही रफ्तार का शिकार होने का खतरा मोल ले रहा है। सबसे बड़ा खतरा ना टेस्ला, ना ही वोक्सवैगन और ना ही जोग्राफियाई सियासत। ये अंदरूनी हो सकता है। एक निज़ाम बहुत तेज, बहुत दूर तक फैला हुआ है, लेकिन जबकि अंदर से दरारें बन सकती हैं, बाहर झटके की लहरें पहले ही जलजला ज़दा है। वोक्सवैगन ने सोचा कि उनके पास वक्त है। रेनॉल्ट ने सोचा कि उनके पास पैमाना है। पुजो का ख्याल था कि उनके पास यूरोप की वफादारी है, लेकिन इनमें से किसी ने भी माल बदर ट्रेन को ज़ेंगज़ू से निकलते हुए नहीं देखा। बिड की कीमतों ने उनके मफरूज़ों और उनके मार्जिन को तोड़ दिया। डॉल्फिन घरेलू तौर पर तैयार करदा कम्पैक्ट हैचबैक से भी कम कीमत में यूरोप में उतरती है, और ये लंबी रेंज, तेज चार्जिंग और यूनिट्स फरोख्त करने के लिए बॉन्ड नाम के बीज की ज़रूरत नहीं होती है। रेनॉल्ट ने सिर्फ शोरूम के फर्श पर रहने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक लाइन अप में कीमतों में कमी की। पुजो ने हंगामी रिफ्रेश प्रोग्राम्स का आगाज किया, और वोक्सवैगन उनका रद्द-ए-अमल बोर्ड रूम की मीटिंगों की हलचल और के साथ एक मायूस मुश्तरका मंसूबा था। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एक और चीनी स्टार्टअप रद्द-ए-अमल स्ट्रेटजिक नहीं था, ये दिफाई बका का मौत था, और यूरोप में ज़लज़ले नहीं रुके। लातीनी अमरीका सनती नकल के लिए बिड की आजमाइश का मैदान बन गया है। ब्राज़ील और अर्जेंटाइन में बिड ने मसनूआत की तरसील और टैरिफ की अदायगी की पुरानी प्लेबैक को छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने कारखाने बनाए। ब्राज़ील में बिड का बाहिया प्लांट अब बाउज़मा लंगर के तौर पर काम करता है। साओ पालो में इलेक्ट्रिक बस लाइन। बिड ब्यूनस आयरस में टैक्सी के बेड़े।
बिड उनकी मौजूदगी अब कोई नई नहीं रही, ये मामूल बन गई है। लेकिन यहाँ मोड़ है। ममालिक सिर्फ बिड की कारें दरामद नहीं कर रहे हैं, वो बिड का पूरा सनती मॉडल दरामद कर रहे हैं। जनूब मशरकी एशिया जीनगजो ले आउट को नकल कर रहा है। वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया ने बिड को न सिर्फ फरोख्त करने बल्कि तामीर करने की दावत दी है। और अफ्रीका, जिसे अक्सर सनतकारी की आखिरी सरहद के तौर पर देखा जाता है, मगरबी इमदादी मॉडल्स को नज़रअंदाज करने और बारास्त एवदौर में छलांग लगाने के लिए बिड को एक पार्टनर के तौर पर सरगर्म कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगरिब ने कभी ये तवक्को नहीं की कि चीनी कारसाज कंपनी तरक्की का खाका बनेगी। फिर भी नर्म ताकत के शानदार उलट-पलट में अब ये नेटो IMF सिलिकॉन वैली एक्सपोर्ट करने वाले मॉडल नहीं है, ये बिड है। जबकि टेस्ला बांड मीसटक पर कलीदी तकरीरें और वाज़े तिजारत पेश करता है, बिड खामोशी के साथ हजम में सामान फराहम करता है। जिगर ज़ेंगज़ाओ जुमला गुमराह कुन है। ये पैमाने की तजवीज़ करता है, लेकिन इसके पीछे फिन तामीर नहीं। ये सिर्फ एक बड़ी फैक्ट्री नहीं है, ये एक जिंदा निज़ाम है, कोडेड क्लिप्टेड और खुद को तक़वियत देने वाला। चीसस असेंबली से लेकर सॉफ्टवेयर डीबिगनिंग तक हर अमल को एक इकोसिस्टम में जम किया जाता है। इंजीनियर्स डिपार्टमेंट्स को तब्दील करने के लिए कैंपस में नहीं आते। डिपार्टमेंट्स को वर्चुअलाइज किया गया है हकीकी वक्त में। मुताबकत पजीर डिजिटल आसाबी निज़ाम में बिड शुरू से अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया गया है। शहरी डिज़ाइन फैक्ट्री ब्लूप्रिंट का हिस्सा है। डवरम कैफेटेरिया, सब्ज जगहें और लॉजिस्टिक्स यार्ड्स इजाफी नहीं है, वो फैक्ट्री के DNA में सरायत कर रहे हैं। ये सिर्फ मुअस्सर नहीं है, ये बंद लूप तहजीब है। और टेस्ला फोर्ड के बकस बिड अपने 40% उन पिट्स को आउटसोर्स नहीं करता है, ये उन्हें बनाता है। टच स्क्रीन, बिड बैटरी, बिड सेमी कंडक्टर मॉड्यूल्स, बिड भी। अमूदी इंज़माम यहाँ एक बज़वर्ड नहीं है, ये मियारी तरीक़ाकार है। ज़्यादातर मगरबी फैक्ट्रियों को कभी भी ऐसा नहीं बनाया गया था। उन्हें ऐसे हिस्सों को जमा करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जो 8 मुख्तलिफ टाइम जोन से आते हैं। बिड फैक्ट्रियों को अंदरूनी तौर पर झटके जज्ब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और स्लोवाकिया में किसी सप्लायर का मोल्ड ठीक करने के लिए या इंडोनेशिया के कंटेनर का कस्टम साफ करने का इंतज़ार किए बगैर। और यही वजह है कि गीगा जेंजो दोबारा काबिल तकरार है। आप इसे क्लोन कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, इसे फ्रेंचाइज कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली के बकस जहां जादू चंद इंजीनियर्स पर मुनहसर है जो पालो आल्टो को नहीं छोड़ेंगे। बिड का मॉडल पोर्टेबल कौम साजी है। इसे किसी दूसरे शहर में छोड़ दें और 36 माह के अंदर यह ऑपरेशनल हो जाएगा। जेंजो गाड़ियों की फैक्ट्री नहीं लगती, ये एक नए सनती दौर का ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। ये इस बारे में नहीं है कि कौन सबसे खूबसूरत गाड़ी बनाता है या कौन अगला डिज़ाइन अवार्ड जीतता है। ये इस बारे में है कि तहजीब के पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पैदावार के बुनियादी ढांचे को कौन कंट्रोल करता है। मुस्तकबिल इस इदारे का होगा जो बेटियों को सस्ती, तेज तर असेंबली और सप्लाई चेन्स को सियासी जीत के लिए नाकाबिल तस्खीर बनाती है। टेस्ला सुर्खियों पर गलबा हासिल कर सकता है। बिड ग्रिड सड़कों, बंदरगाहों और पॉलिसियों पर हावी है। एल्विन ने ट्वीट करते हुए बिड ने 3 नए प्लांट खोले, एक जनूब मशरकी एशिया में, एक जनूबी अमेरिका में, एक मशरक वस्ता में। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई वायरल लॉन्च वीडियोज नहीं, सिर्फ फांसी। और यही बात है, बिड को परवाह नहीं है कि आया इसकी कारें सेक्सी हैं। वो परवाह करते हैं कि वो काम करते हैं, वो चलते हैं, वो वक्त पर भेजते हैं। और ये इन शहरों में सस्ती हैं जिनका ज्यादातर अमरीकी कारसाज तलफ़ुज़ भी नहीं कर सकते। सिलिकॉन वैली ने अब दुनिया का तसव्वुर किया, लेकिन बिड इसे बना रहा है। ये इनोवेशन थिएटर बमुकाबला सनती हकीकत है। ये रियासत से मुंसलिक अमल है बमुकाबला सरमायाकारों से चलने वाला उतार चढ़ाव। ये एक वाहिद मरबूत माहौलियाती निज़ाम से हर साल 10 लाख ईवी है। और इसलिए ये सवाल अब बाकी नहीं रहा कि क्या मगरिब चीन को आगे बढ़ा सकता है। सवाल यह है कि जीतने के लिए कोई मार्केट बाकी ना रहने से पहले उनके पास कितना वक्त है। अगर इसने आपका दिमाग उड़ा दिया तो तसव्वुर करें कि आगे क्या हो रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इत्तलात को ऑन करें ताकि आप उन कहानियों से कभी महरूम ना हों जो वो नहीं चाहते कि आप सुनें।